Share your desktop. Share. Okay, to start the lecture for you today is the आज पिछली बार मैंने आपको चाय पिलवाई थी. टुडे इज टू हैव द कॉफी. बहुत इंटरेस्टिंग है. टू टेक द इंटरेस्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कॉफी. कॉफी अरेबिका एंड कॉफिया कैनिफोरा, दो स्पीसीज इसमें हैं. दोनों ही ऑल बोथ स्पीसीज दे आर ग्रोन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, पूरे विश्व में ये दोनों क्रॉप्स ग्रोन होती हैं. तो आपको प्लीज टू ज्वाइन. ओके, तो देख रहे हो दैट इज टू कॉफी को देख रहे हो. दैट इज टू हार्डी बुश है. दैट इज टू हाइट अप टू द 5 to 6 फीट तक इसका हाइट होता है. और टू बॉटनिकली द फ्रूट इज ड्रूप होता है इसमें. ठीक है, तो क्विकली दे हैव टू ज्वाइन फॉर ऑल वन. सभी के सभी ज्वाइन कर लें. एंड जल्दी करें आप लोग. क्विकली टू दे ज्वाइन. ओके, कॉफी 2N/34 है इसमें. और ब्राज़ील इज द ओरिजिनेटेड प्लेस ऑफ दिस वन. So that is to start the lecture for you. So all one to have to join please quickly. So this crop is very important for that is the stimulating crop to take as such like a sipping crop to take as such like a tea की तरह इसका यूज करते हैं with the combination of the milk के साथ इसका प्रयोग करते हैं. ठीक है, तो आ जाते हैं क्रॉप पर. So coffee, that is to coffee is the origin for traced to the 12th century. You can hear about the Ethiopia is the found the strains of the coffee. Okay, so here it is to believe to have to be in the first harvested crop. So that is to traders throughout the coffee to have to Middle East from the where beginning the spread cultivated near about the 15th century. That is penetrating every corner of the Europe in next to the hundreds of the year have to grown the crop. Okay, so that is basically that is originate from the Brazil. So coffee become very important means of the European trade. It is spreading the Dutch or French or in the British colonies during the 18th to 19th century. So at this time the people to Africa or native of the colonies to have enslaved the work in the coffee plantations on that areas. Okay, so during the period of the decolonization of the coffee was put to the forwarded in the myrical crops means that is to have to crop provided the cash money through this one. So that would allow to developing the countries have to achieve economic growth through this crop. So you have to the here is to Rubiaceae family में रखा गया है. 2N/34 है. कॉफी जीनस कॉफी के अंदर है. They have two species they are grown all over the world, that is Arabica and Canephora. यानी Arabica and Robusta. Robusta there are two least production compared to the Arabica. ठीक है, so that is two species Arabica and Robusta have two. The Arabica that is Coffea Arabica and Coffea Canephora यानी Robusta. Okay, दो species हैं. They have two species there. So again to have to check the how many students are there waiting for the. So you have to add. Okay, and after then to start continue they have to the three species here. To two species the commercially grown in there. Coffee Arabica, it is one of the best quality coffee. And that is beans. इसको fruit को beans बोलते हैं. Beans are uniform, bold, regular size and above to good flavor. It is grown India, Brazil, Colombia, that is Costa Rica, Kenya and Jamaica. ठीक है, तो Coffea Arabica that is to grown near about 70% parts they are covered by this species. Coffea Canephora, that is Robusta coffee बोलते हैं. It is to second best type of the coffee. So the beans from that plant to usually the smaller compared to the Arabica. Okay, so the lower quality beans to natural flavor and to give the higher yield in Arabica. So again to have to they join और कोई नहीं है तो कोई no problem. So Coffea Laverica is the third species, but at least of the production of this coffee produce third main type of the coffee. To beans is the urge to size and but black in quality. It is to grown Malaysia and Guyana में that's to grown. Okay.
So here देख सकते हो to the distribution cultivation of the coffee all over the world. First of all they have to the अब here देख सकते हो that is to यमन and to near about the Brazil से अमन में गया, यमन से they have to Java से again to that is India में also have to Yemen to the India, mostly Karnataka, Kerala have to grow that commercial crop. After they have to reach to the that is Amsterdam, Paris, and that is to Martin Q and spread all over the world through the first of all to have to their original place that is the Brazil to come the crop. Firstly, they have grown on the Brazil. That is to strains their primary origin that the Brazil they are grown. After then to distributing all over the world the coffee strains. Okay, so they have the two type coffee हमने डिस्कस किया हुआ था. And they have to some coffee 20 coffee imported country that is to from India 2014 का डाटा है ये. तो इटली सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, इसमें 25.62% इंपोर्ट करता है इटली. इसमें रसिया 13% है, जर्मनी 11% है, आपका बेल्जियम 6.82 है, अदर्स में 5.24 है, स्पेन 4.86 है, यूक्रेन 3.4 से, फिनलैंड 3.4 है, जॉर्डन 2.6, कॉर्डन 2.4 है, that is Slovenia that is 2.4 है, ग्रीस 2 है, that is to स्विट्जरलैंड 2, फ्रांस 2, मलेशिया 2, कुवैत 1, ऑस्ट्रेलिया 1.7 है, पोर्तुगल 1.7 है, हंगरी 1.73. They have to import from the India. India have to alone a lot of coffee compared to the other countries. Okay, so that is to after they have to which soil and climate they need for its cultivation. So the coffee is not very specific, but is to need the tropical climate for its cultivation to required. That is to important feature of the ideal soil for the portable coffee cultivation. So coffee well fertile and rich humus soil is need for best production. So the soil depth up to the 75 centimeter have no hard pins they are found in the soil. So shallow have to shallow rooted zones of the root that is to 30 centimeter, not more than 30 centimeter they are gone the root. Okay, so deep and permissible soil that is to more than 75% well developed tap root system, and rhizosphere is occupy the considerable soil volumes. Okay, so they have to slightly acidic soil need for its cultivation, but it is natural soil is also the best one for the cultivation. Okay, so very best for one the soil pH, मतलब हमारा acidic soil is the best for one. Okay, आप देख रहे soil है climate requirement है soil for that is a parameter of the Arabic coffee और Robusta coffee के दोनों parameter compare का parameter है. Soil deep fertile होनी चाहिए, दोनों में है, Arabica में same the characteristic, slightly acidic चाहिए. इसमें एक बार अगेन देख लेते हैं कितने लड़के बेक पे हैं. तो yes, so that is extent of the slope, that is gently light slope soil is the or land is the most best for the cultivation. So aspect of the northeast or northeastern aspect is the ideal for the both. Okay, so elevation 1000 to 1500 meters the elevated to the cultivated of this crop. टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक और 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड दे हैव टू हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट नीड फॉर इट्स कल्टीवेशन. सो देख रहे हैं आपको जो कर्नाटका है, केरला है और ब्राजील साइड हैव टू नीड द बेस्ट क्लाइमेट फॉर दिस कल्टीवेशन. रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70 to 80 है, 80 to 90 है. एनुअल रेनफॉल 1600 से 2500 एनुअल रेनफॉल है. ठीक है, ब्लूजूम रेनफॉल दैट इज टू 1600 to 2500 ब्लोजोम रेनफॉल है इसमें. So that is to that baking source that is April May to April that is to March April we have to the baking source of the flower. Okay. So that is to climatic factors, the absence of the blossom source during the March, April or March have to the both species. So absence of the baking source during the delayed beyond 1 month after the blossom source, or poor concept or delayed beyond the 20 to 25 days after the blossom, or to hailstorm that is to injurious for the flower or vegetative parts, or that is to rain and day blossom that are partial or compact failure to the crop, and to have to western southern part partial or complete failure or partial crop that is failure due to the heavy rains. Okay, so wind exposure to that is sensitive है wind के लिए, they have to that is to damage of the crops. Okay,
आप देख रहे हो यहाँ पर फ्रूटिंग दिखाया गया है, दैट इज टू ग्रीन beans and their fruiting. So the seeds of the fruit is to economic parts is to droop like a peach. So both begins bearing in the 3 to 4 years. Okay, time to mature fruit, the Arabica 7 to 8 month और Robusta 11 to 12 month. Okay, that is to इसका मतलब Arabica take the least time compared to the Robusta. Robusta 11 to 12 month में तैयार होती है और Arabica 7 से 8 महीने लगते हैं इसको तैयार होने में. टोटल क्रॉप यह टू 3-4 ईयर का क्रॉप होता है. आफ्टर देन टू डिहॉर्निंग और आफ्टर दैट टू रीप्लांटिंग ऑफ द क्रॉप्स. ओके, जो प्रोडक्टिविटी 30 to 20 to 30 ईयर्स तक इस प्रोडक्टिव रहता है क्रॉप का. एंड टू द हैव टू बोथ नीड प्रूनिंग फॉर द बेस्ट प्रोडक्शन. प्रूनिंग का मतलब ही होता है टू हैव रिड्यूस द ग्रोथ एंड टू हैव टू एक्यूमुलेट द कार्बन नाइट्रोजन इन द बॉडीज. ओके, बॉडी सिस्टम्स. तो कॉफी फ्रूट इज कॉल्ड टू चेरी. चेरी को बोलते हैं, दैट इज टू सी. आप देख रहे हो चेरी को. तो एक्सोकार्प रेड स्किन होता है, मेसोकार्प सीड पल्प होता है, एंडोकार्प में टेस्टा होता है, बीन्स होता है, एम्ब्रियो कोटिलेडन्स, उनको हम बीन्स बोलते हैं. इसके अंदर 2 कोटिलेडन्स होते हैं, जैसे गेहूं होता है, व्हीट देखा, व्हीट जैसे 2 कोटिलेडन्स होते हैं जिनको बीन्स बोलते हैं. और इसमें 2 तरह की चेरी बनाते हैं, एक तो ड्राई चेरी होती है, वेट चेरी होती है. ठीक है, ये देखो यहाँ पर दे हैव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है. इसको डिस्क, पहला नंबर है डिस्क, दैट इज इनेविल है. इन एक्सोकार्प स्किन है 2 नंबर पे, 3 नंबर पे मेसोकार्प पल्प है, 4 नंबर पे एंडोकार्प है, होल पार्चमेंट बोलते हैं इसको, और 5 नंबर पे टेस्टा है, सिल्वरी स्किन जिसको बोलते हैं, और 6 नंबर पे कोटिलेडन्स हैं, और 7 नंबर पे एम्ब्रियो है. तो दे हैव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्रूट्स. ओके, जिसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली ड्रूप होता है लेकिन चेरी के नाम से जानते हैं, और इसके अंदर बीन्स होता है. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो दैट इज टू कॉफी फ्रूट में दे पूरा का पूरा फ्रूट दैट इज टू चेरी फ्रूट बोलते हैं. बॉटनिकली ड्रूप होता है. एक्सोकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प में दे हैव टू डिवाइडेड. तो दैट इज सिल्वरी स्किन हियर टू दैट पार्चमेंट इनसाइड ऑफ दिस वन. एंड बीन्स होते हैं, 2 दाने होते हैं इसके अंदर जिसको बीन्स बोलते हैं, और पल्प होता है. ठीक है, तो हमारी जो कॉफी किससे बनती है, कॉफी हमारी बीन्स से बनती है. ठीक है, बीन्स को पहले हम वेट में क्या करते हैं, इसको फर्मेंटेट करके छोड़ देते हैं, तो इसमें बीन्स निकाल लेते हैं, ड्राई में भी उसको बीन्स निकाल लेते हैं. ठीक है, India coffee market, that is to key data here to see the Karnataka is the highly producing state compared to the Kerala and Tamil Nadu. And so have to the traditional coffee growing market in the Karnataka, after then to Kerala and Tamil Nadu. So the mostly south parts of this India, they have to the main market of the coffee. Okay, so Robusta, that is to दिया गया है Robusta का, they have to 22 lakh and 4500 यानी 4500 मिलियन टन कह सकते हो इसको. अरेबिका में है 95,000 मिलियन टन द प्रोडक्शन. तो मिलियन टन दोनों का है, बट इसमें सबसे ज्यादा रोबस्टा प्रोडक्शन होती है. अराउंड टू 70% द पार्ट दे आर कवर्ड बाय द रोबस्टा. ओके, यहाँ पर देख सकते हो डाटा इज द टू अरेबिका और रोबस्टा और टोटल डाटा 2020 और 21 के डाटा है, करंट डाटा है. कर्नाटका एलोन टू द हैव टू द प्रोडक्शन इन टन दैट 75,300 टन प्रोडक्शन एलोन टू द कर्नाटका. आफ्टर देन टू केरला 1,900, तमिलनाडु 13,000 is the total production, and Andhra Pradesh 10,900, Odisha 500, eastern region that is to 65%. टोटल द प्रोडक्शन 20 to 21 एंड 19-20 दोनों का डाटा दिया गया है. 3,42,000 का है, एंड टू द 19-20 में था 2,98,000. तो मोस्टली 20-21 का डाटा है. हैव टू चेंज द सम डाटा कंपेयर टू द लास्ट डाटा. ओके, so world coffee production, Brazil alone to have played an important role to produce only to 21.1% Arabica coffee, only the country which is the first possibility in the coffee zones. Okay, after then Colombia 13.9% Arabica, and Indonesia 7.3% Robusta, and other important producing country that is to Vietnam है, Mexico है, Ethiopia है, India, Guatemala, Ivory Coast and Uganda, they have to the producing the coffee. Okay, so that is to share of the part here to Brazil 21.2%, to Ivory Coast 12%, Colombia 9.9%, Indonesia 9.1%, Mexico 9.5.2%, और that is Angola 4.5 है, Uganda 3.5, India 2.6 alone to have to compare to the total coffee production. So other country 31.8 and total 100%. So total area under the coffee 11.6 million hectares.
सर इन कर दो So that बच्चों is को to पहले। here to हेलो। growing coffee region in the world, to see here हेलो। to the coastal part, up to the coastal tropical zone, tropical subtropical zone is the best zone for the production of this one. तो आप देख रहे हो tropical zone जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ से निकला हुआ है, इसके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो एरिया है वहाँ पर कॉफी हो रहा है। तो आर रीजन देख रहे हो, आर यहाँ कॉफिया कैनिफोरा है जिसमें ग्रीन डार्क ग्रीन कलर दिखाया गया है। कॉफिया कैनिफोरा कॉफिया अरेबिका बोथ एम में दिखाया गया है लाइट में, और ए पार्ट है कॉफिया स्पीसीज अदर स्पीसीज कॉफी की, दे हैव टू ग्राउंड दिस वन। तो आप देख सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की जगह जो है ना, दैट इज ट्रॉपिकल पार्ट्स दे हैव टू ग्राउंड द coffee arabica. Okay, so here to have to total coffee production in India दे रखा है area and production of the both total area under cultivation of the coffee India, that is to 3,33,000 hectare area है, and total production that is 2,76,350 million ton production। मेन कॉफी टाइप है अरेबिका है, रोबस्टा है, लार्जेस्ट कॉफी कर्नाटका में होता है। एरिया टोटल 1,83,100 हेक्टर है, एंड टू द प्रोडक्शन दैट इज टू 1,82,500 million ton the production। So data is to 2.6% of the total bird acreages and to 3% of the total bird production। Okay, क्लियर हो रहा? हम एक बार आपको चेक कर लेते हैं आप कितने स्टूडेंट और आए हुए हैं। So that is to साइज ऑफ होल्डिंग इन इंडिया। इंडिया में कितने साइज के लोग इस पर खेती करते हैं? तो अबाउट 98% ऑफ द इंडियन कॉफी ग्रोवर्स दे आर स्मॉल होल्डर, छोटी छोटी जमीन वाले हैं जिनकी जमीन 10 हेक्टेयर से कम है। अकाउंटिंग टू 1.48 lakh growers they are growing the coffee। Okay, so the production of and productivity of the coffee in India, production अरेबिका कॉफी का 815 kg पर हेक्टर इसका प्रोडक्शन है, और रोबस्टा का 1065। रोबस्टा प्रोडक्शन तो ज्यादा पर हेक्टर है लेकिन उगाई कम जाती है, ठीक है ना। एवरेज प्रोडक्टिविटी है 946 kg पर हेक्टर जो एवरेज प्रोडक्शन इसका है, ठीक है। अभी और भी स्टूडेंट आए हैं, एक्चुअल में आप लोग धीरे धीरे ज्वाइन करते हो तो आ जाते हैं अपनी इस पे। मेजर कंज्यूमर्स यूएसए 23% अलोन टू दे आर कंज्यूम्ड हाई प्रोपोर्शन टू इंपोर्टेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। सो अप टू यूएसए 23% है, और यूरोपियन कंट्रीज दैट इज टू 39%। ओके, टू टाइप ऑफ कॉफी यहाँ देखा इस तरह ये देख रहे हैं, दैट इज टू बीन्स का है, ये बीन्स दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज टू टाइप, ये बीन है, दो स्पीसीज हैं, अरेबिका कॉफी का है और रोबस्टा कॉफी का है, कॉफी अरेबिका एंड कॉफी कैनिफोरा, ठीक है। सो दैट इज टू टेट्रापॉल सेल्फ फर्टाइल स्पीसीज है, 2n बराबर 34, एंड इथोपिया दैट इज टू हाईलैंड्स है, दैट इज टू मोर देन 1600 सी लेवल्स है, 15 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और मीन सी लेवल दैट इज और एनुअल रेनफॉल दैट इज 1300 का है, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी है, ससेप्टेबल टू रस्ट के लिए ससेप्टेबल है। रोबस्टा के केस में डिप्लॉयड कल्टीवार है, सर इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है इसमें। रेन फ्रॉस्ट है दैट इज कॉन्गो बेसिन में पाया जाता है, दैट इज लेस 750 एलिवेशन पे है मीटर पे, और 24 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड हायर टेम्परेचर पे इसको ग्रो कर सकते हैं, और एनुअल रेनफॉल 1550 mm है। लेस पेलेबल होता है कंपेयर टू द अरेबिका एंड टू रेसिस्टेंट टू द रस्ट आल्सो हैव टू द। इसमें सीड्स जो आपका बीन्स होता है वो भी साइज छोटा होता है रोबस्टा का कंपेयर टू द अरेबिका, ठीक है। और करेक्टर है इसमें, मीडियम साइज ट्री होता है 40 to 20 दैट इज टू फीट ऑफ द टाल, ठीक है, एंड टू मीडियम टू लार्ज दैट इज अप टू द 30 फीट ऑफ द टाल। मीडियम बिगर होता है, ये बिगरस होता है, ज्यादा बिगर तो रोबस्टा ज्यादा बिगरस होता है। लीव्स स्मॉलर होती हैं अरेबिका में, रोबस्टा में बड़ी लीव्स होती हैं, ठीक है, एंड थिनर लीव स्मॉलर एंड थिनर, इसमें लार्जर एंड थिकर मोटी होती हैं। शीडलिंग यूनिफॉर्म होता है, शीडलिंग वेरिएबल होता है, दोनों में कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे गेहूं का दाना होता है, बट हैव टू नॉट टू द फीट दैट इज टू विंस। ओके, अभी और दिखाएंगे। सो क्रॉप कैलेंडर में हम देखें दैट इज टू हार्वेस्ट पीरियड, इसमें देखा कलर के हिसाब से नीचे दे रखा है। हार्वेस्ट पीरियड डार्क रेड पीरियड है, दैट इज टू हार्वेस्ट पीरियड। बेस्ट हार्वेस्ट पीरियड में लाइट पीरियड जैसे बीबी है, बेस्ट हार्वेस्टिंग पीरियड है। और शिपिंग पीरियड जो हम दैट इज टू सेंड टू द मार्केट ऑफ द योर फ्रूट्स और इमेच्योर फ्रूट दैट इज राइप फ्रूट्स, राइप एंड
फॉर द प्रोसेसिंग टू शिपिंग पीरियड बोलते हैं, दैट इज टू ग्रीन कलर का बी के नीचे दिया हुआ है, और बेस्ट शिपिंग पीरियड दैट इज टू मार्च अप्रैल मई जून तक बेस्ट शिपिंग पीरियड होता है, तो दैट इज टू कैलेंडर क्रॉप कैलेंडर ऑफ द कॉफी। अरेबिका वर्सेस रोबस्टा में हम दोनों में कंपैरिजन करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 70% अलोन द क्रॉप अरेबिका दे आर ग्रोन, ओके, 30% टू दैट इज टू रोबस्टा। तो कंपैरेटिव स्टडी विश्व में देखें तो अगर अलोन टू द 70% दे आर ग्रोन द अरेबिका क्रॉप्स, ओके। यहाँ पर देख सकते हो अरेबिका और रोबस्टा के दोनों में वीन्स में डिफरेंस है, कलर में डिफरेंस है, अरेबिका और रोबस्टा के उसके साइज में भी डिफरेंस है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो पार्चिश ट्रांसफर सेक्शन हमने इसको दिया हुआ है, तो पार्चमेंट है, स्किन है, पल्प है, और बीन्स, एक फ्रूट में 2 बीन्स होते हैं, ठीक है, 2 बीन्स इन द फ्रूट, दैट इज 2 स्टाक है, तो दैट 2 वर्टिकली फ्रूट क्या है, ड्रूप है, जिसको हम चेरी बोलते हैं। क्लियर हो रहा है ना, चेरी जैसा आपने खाया होगा, चेरी चेरी जैसा दिखता है, इसको चेरी बोलते हैं, बट इनसाइड है 2 बीन्स, जिससे हम कॉफी बनाते हैं। किससे बनाते हैं? बीन्स से, ठीक है। बॉटनी पे आ जाते हैं, फैमिली रूबिएसी के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। जीनस को इसका कॉफी है, द स्पीशीज वी हैव टू डिफरेंशिएट थ्रू द फ्रूट कैरेक्टरिस्टिक्स, लीफ एंड ट्रीज। कॉफी हैव 66 स्पीशीज, along the 66 one only 3 type of the species they are grown all over the world। 3 कॉफिया अरेबिका है, कॉफिया कैनिफोरा है, कॉफिया लैवेरिका है, 3 स्पीसीज हैं जो हम ग्रोन करते हैं। along वन कॉफिया अरेबिका 70%, कॉफिया कैनिफोरा 70%, और रेयर कंडीशन में कॉफिया लैवेरिका है जो पॉइंट में इसका प्रोडक्शन है। यहाँ पर प्लांट्स को देख सकते हैं, कॉफी फ्रूट है, बियरिंग कैसे फ्लावरिंग होता है, दे आर फ्लावर, दे आर अराइजिंग फ्रॉम द लीफ, एक सेल से निकलते हैं, और दे हैव टू इन एंड द क्लस्टर में होते हैं, तो दे पेंटामेरस फ्लावर, व्हाइटिश कलर का पेंटामेरस फ्लावर होता है, ठीक है। 1 सीजन ओल्ड शूट पर ये फ्लावरिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर देखो फ्लावरिंग हो रहा दिखाया गया है, तो द लॉट ऑफ फ्लावर ऑन द कॉफी ट्री, सो दैट देख रहे हो, सिंपल लीफ है, अल्टरनेट में एक दूसरे के अपोजिट में लगी हुई है। यहाँ पर देख सकते हो प्लांट को, यू हैव टू सी द प्लांट। यहाँ पेंटामेरस फ्लावर होता है, आप देख रहे हो व्हाइटिश कलर का पेंटामेरस फ्लावर है। देख रहे हो व्हाइटिश कलर का, दे आर अराइजिंग फ्रॉम द लीफ एक्सेल से निकाला गया है, ठीक है। यहाँ पर एनाटॉमी ऑफ द चेरी का देखें तो हैव टू डिफरेंट पार्ट्स क्लियरली टू शोन हियर, आप देख रहे हैं, दैट इज आउटर स्किन, दैट इज रेड स्किन बोलते हैं, पल्प, बटर एंड शुगर, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वन। म्यूसिलेज जैसे स्वीट कोटिंग होती है म्यूसिलेज की, इसके अंदर बीन्स होते हैं, ठीक है। जैसे पार्चमेंट होता है, पार्चमेंट दैट इज टू हुल जिसको बोलते हैं, और इसके अंदर दैट इज टू सिल्वर स्किन होता है, और इसके अंदर ग्रीन कॉफी बीन्स होती हैं, ठीक है। आप देखो कितने कवर के अंदर ये आपको मिलता है। आफ्टर देन टू कलेक्ट द बीन्स एंड टू हैव टू प्रिपेयर द कॉफी। क्लियर हो रहा है ना? यहाँ पर देखो ट्रांसफर सेक्शन मैंने दिया हुआ है, तो द बीन सीड आप देख रहे हो, दैट इज आउट स्किन, सिल्वर स्किन है शीट के ऊपर, और इसके ऊपर पार्चमेंट चढ़ा हुआ है, इसके ऊपर पल्प है, पल्प के ऊपर आउटर स्किन है, तो इतने सुरक्षा के अंदर इसका सीड्स होता है, ठीक है। तो आप बहुत क्लियर हो गए होंगे कि हम जो कॉफी बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? सीड से, बीन से, ठीक है ना। यस सर। Arabica coffee variety developed at the Central Coffee Research Institute, Wallenor, that is to, they have 2 different species here to selection. One they had to develop through, from the S to 288 and 288, that is the high percentage of the defective genes due to have to the false polyembryony, और selection 2 that is pedigree selection develop की गई है, that is she distributed this selection, and selection 3 the multi crosses है इसका, सिलेक्शन 3 का एस 288 से क्रॉस कराया गया अरेबिका का, और सिलेक्शन 3 बना, और इससे हम डेवलप किया है सिलेक्शन 3, ओके। सो दैट इज रिलीज इन 1945 टू 46 में रिलीज किया गया। हाई यील्डिंग है, गुड क्रॉप क्वालिटी है। सिलेक्शन 4 प्योर लाइन सिलेक्शन से डेवलप की गई है। सिलेक्शन 5 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड वेराइटी है, सिलेक्शन से डेवलप की गई है, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से। सिलेक्शन से दे आर इंटर स्पेसिफिक से डेवलप की गई है। सिलेक्शन से मल्टी क्रॉसेस है, दैट इज टू
San Ramon is the dwarf mutant from the then Arabica type introduced in the 1953. This is the mutant segregation into the 70% of the dwarf and 30% of the tar plants. Okay, इसमें दोनों तरह के पौधे आते हैं, डेवलप होते हैं after the regeneration of the plant. Okay, that is to call the San Ramon hybrids. Okay. यहाँ पर देखो सिलेक्शन 7 है, आल्सो द सैन रमन हाइब्रिड्स है, मल्टी एपिल क्रॉसेस तैयार किया गया है. सैन रमन इज द ड्वार्फ म्यूटेंट फ्रॉम द एन अरेबिका. ओके, और सिलेक्शन 8 है, दैट इज आल्सो द हाइब्रिड प्योर लाइन सिलेक्शन से डेवलप किया गया है. सिलेक्शन 9 हाइब्रिडाइजेशन जो है, दैट इज टू सिलेक्शन 8 और दैट इज टेफोरिकेरा से क्रॉस किया गया है. सिलेक्शन 10 डबल क्रॉस, दैट इज टू क्रॉसेस ऑफ द दैट इज कैटूरा क्रॉस अदर देन द हाई डेंसिटी ट्रेनिंग. ठीक है. एंड सिलेक्शन 11 है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से डेवलप किया गया. सिलेक्शन 12 है, दैट इज टू कावेरी कैटिमोर बोलते हैं इसको, कावेरी और कैटिमोर के नाम से. एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द नेचुरल हाइब्रिड बाय द इन्वॉल्विंग द हाइब्रिडाइजेशन, तो क्रॉस बिटवीन द कैटूरा एंड टू एचडीटी से डेवलप किया गया है. तो दे हैव टू डिफरेंट वेराइटीज एंड स्पीसीज. कावेरी कॉफी सिलेक्शन 12. ठीक है, कावेरी सिलेक्शन 12 है, दैट इज द फीचर ये क्योंकि मोस्टली दे आर ग्रोन द कावेरी हाइब्रिड इज द एफओ क्रॉस बिटवीन द कैटूरा ए सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ द अरेबिका एंड टू क्रॉस विद द हाइब्रिड डी तेमोर एट इज द क्रॉस दैट इज द ए सेमी ड्वार्फ हाइब्रिड्स. ओके, सुटेबल फॉर द हाई डेंसिटी प्लांटिंग. कावेरी इज द कॉम्पैक्ट बुश उसमें होता है, बिगरस वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, सुटेबल फॉर द हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सुटेबल है. ठीक है, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होती है इसमें. दे आर टू प्राइमरी नंबर ऑफ प्राइमरी अप टू द 1 मीटर हाइट एंड नोड्स 16 to 20 नंबर्स नोड्स होते हैं. वेरी क्लोज इंटरनोड्स इसमें होते हैं. जितने इंटरनोड्स क्लोज होंगे उतने ही प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होगी और जितनी भी ब्रांचिंग होगी उतना ही फ्लावरिंग होगा. ठीक है, तो प्रिकोशियस है, अर्ली फ्लावरिंग होती है, अर्ली बियरिंग है, that is reactions to the leaf rust, that is to time of the release the showed high resistance to the leaf rust. तो very important variety है कावेरी सिलेक्शन 12. ओके, that is चंद्रगिरी कॉफी. इट इज टू न्यूली रिलीज्ड कॉफी, 2007-8 में रिलीज किया गया है. कॉफी वुड टू द ओरिजिनल रिसोर्सेज ऑफ द पुर्तगाल. सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ईयर 1975 TCCRI Bellingnor and from the Portugal. So the trial it is to intensive research trial है, but to taken up to the CCRI Bellinghonor. ठीक है, फीचर्स इसके क्या है, बुशी ग्रोथ है, बिगर साइज का बेरी होता है, रेसिस्टेंट टू द लीफ रस्ट है एंड टॉलरेंट टू द ड्रॉट. दैट इज टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फीचर्स ऑफ द चंद्रगिरी कॉफी. दैट कॉफी ट्री ग्रोथ साइकिल. ड्राई एंड कूल सीजन में फ्लोरल इनिशिएशन होता है, रिड्यूस्ड वेजिटेटिव ग्रोथ, उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होती है. वेट सीजन में फ्लावर ओपन होता है, फ्रूट सेट होता है, बिगिंस टू डेवलप एंड एक्टिव वेजिटेशन होता है. ड्राई और कूल सीजन में दैट इज टू फ्रूट राइपन होता है एंड फ्लावर बर्ड इनिशिएशन होता है, रिड्यूस टू वेजिटेटिव ग्रोथ, और वेजिटेटिव ग्रोथ उस समय रिड्यूस हो जाता है. एक बार फिर देख लेते हैं कितने स्टूडेंट और हैं. तो यहाँ पर देख रहे हो कॉफी ट्री ग्रोथ है, ऑर्थोट्रोपिक स्टेम होता है, इसमें ऊपर की तरफ बढ़ता है, इरेक्ट ग्रोथ होती है. और इसमें जो हमारी जो ब्रांचिंग होती है, आपने सब ब्रांचिंग दैट इज कॉल्ड दैट इज द प्लेजियोट्रोपिक स्टेम, जिस पे हम फ्रूटिंग कराते हैं. हॉरिजॉन्टल सेकेंडरी स्टेम ग्रोइंग ऑफ द ऑर्थोट्रोपिक स्टेम, दीज आर द फ्रूटिंग वुड. वो फ्रूटिंग वुड बोलते हैं जो मेन आपकी ऑर्थोट्रोपिक स्टेम से आती है. पहले स्टेम बढ़ता है, फिर उसमें साइड ब्रांचेस होती हैं, साइड ब्रांचेस दैट इज द प्लेजियोट्रोपिक स्टेम, उसको प्लेजियोट्रोपिक स्टेम बोलते हैं, जिसपे हम फ्रूटिंग कराते हैं. ठीक है. Growing condition, that is to nursery condition, growing under the plantation crop. Small farmers under sad condition, they have to grow the seed in the full sun, that is monoculture condition. That to many condition grown of the beans in the nursery. So mixed farming also the adopt in the coffee. तो कॉफी प्रोडक्शन प्लांटेशन दैट इज टू स्लाइटली एसिडिक सॉइल में इसको करते हैं, बिगिनिंग टू द वेट सीजन में, जैसे आपका रेनी सीजन है, वर्टिकल पोजीशन 30 और 30 डिग्री एंगल्स पर इसको हम सब ब्रांचेस को करते हैं. स्पेसिंग नीड लाइट फॉर द फ्रूटिंग राइपनिंग. अरेबिका में प्लांट जो हमारे 1350 ट्री पर हेक्टर लगते हैं और रोबस्टा में 900 से 1000 ट्री पर हेक्टर आते हैं. टाइम ऑफ द फ्रूटिंग टू 3 to 4 ईयर ऑफ द ऑप्टिम मैच्योर प्लांट. 3-4 साल लग जाते हैं प्लांटिंग के बाद, जब तक मैच्योरिटी आती है, नीड फॉर द मैच्योरेशन. सो जुवेनाइल फेज हैव टू 3 to 4 ईयर. ओके, तो फ्रूट ऑन द ईयर ओल्ड 1 year old bush or 1 year old fruiting stem to need for its fruiting. Okay,
प्लांटिंग एंड आफ्टर केयर द सिलेक्शन एंड साइट, कैसी सिलेक्शन साइट चाहिए इसके लिए, so have to the water supply have to that is selected the site should be have to following the parameters. So that is to water supply as the perennial sources, soil rich in organic matter होने चाहिए, gentle slope थोड़ा सा स्लो जमीन हो, नॉर्थ दैट इज स्लोप टू नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है ना. To drainage that previous should be have to the adequate drainage to need for its best cultivation. So altitude that to minimum 500 from sea level to अरेबिका के लिए 1000 to 1500 है, रोबस्टा के लिए 500 to 1000 है. ओके, so wind break eastern wind during the December to February need for its protection or your coffee orchards or to that is injury if you can't to provide the protection of fencing to injury in the plants for the cold injury, or have to bend belt of the silver oak or orange tree or coffee to have to need for the in fencing. ओके, तो फेंसिंग किससे करा रहे हैं, सिल्वर ओक से फेंसिंग करा रहे हैं इसमें, ठीक है. partially shed that is to clear natural vegetation for providing the required partial shade. इसमें शेडिंग की व्यवस्था भी करते हैं जिसको नेचुरल ग्रीन लीफ को लेने के लिए, बट शेड इज आल्सो दैट टू डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन but increase the flavor and aroma and color of the fruits. So the need for the shade in the coffee orchards. Okay. Here to see the spacing of the planting. अरेबिका में टाल प्लांट के लिए 6x6 और 7x6 और 7x7 पे हम लगाते हैं. अरेबिका ड्वार्फ में जैसे कावेरी है आपका सिलेक्शन 12 है, दैट इज 5x5 पे लगाते हैं. दैट इज टू रोबस्टा है टाल, दैट इज एस that is to 274 है, एंड ओल्ड रोबस्टा है 10x10 पे लगाते हैं, और S1 और R और S2R दैट इज टू 12x12 पर, और रोबस्टा में C/R दैट इज टू दैट इज 8x8 पे लगाते हैं. S3R स्टेंस नंबर है. अदर रोबस्टा में दैट इज टू 10x10 पे, ओल्ड रोबस्टा में 12x12 पे. प्लांट लैंड स्क्वायर सिस्टम से हम इसको प्लांट करते हैं. स्लोपी लैंड जरूरी है इसके लिए, और दैट इज स्टीप स्लोपर के लिए टेरेस प्लांटिंग भी हम कर सकते हैं, ठीक है. ओपनिंग अप टू पिक्स पिटिंग, इसमें प्लांटिंग के समय पिटिंग जरूरी है. टाइम मार्च अप्रैल में हम इसको गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा लगा इसमें 45x45x45 सेंटीमीटर के. इस आफ्टर देन टू मिक्स अप द फर्टिलाइजर एंड अप सॉइल ऑफ द पिट and to rest of the 15 to 20 days for weathering. Okay, so planting material selection from planting seed propagation और vegetative propagation दोनों ही हम इसमें यूज करते हैं. If you check the germinality to use the vegetative propagation or otherwise the seed propagation. So seed propagation में पहले first of all to prepare the nursery, पहले हम नर्सरी बना लेते हैं. Selection the berries, only the ripe berries are marked for the coffee nursery, and to seed collection and remove pulp and get beans. बीन को हम सोइंग करते हैं. डिस्कार्ड फ्लोट एंड डिफेक्टेड बीन्स, पहले हम उसको देख लेते हैं कि बाइबल है और नहीं है. जो बाइबल जो सीड होता है वो नीचे बैठ जाता है, और लाइट वेट होते हैं वो हटा देते हैं. सीड ट्रीटेड के लिए हम फंजीसाइड से इसको ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है. आफ्टर देन टू सोन. ये नर्सरी आप देख रहे हो दैट इज तो कॉफी नर्सरी है, इसको हम तैयार किया हुआ है. और कटिंग्स का भी जिसमें पॉइंट देख रहे हो, इतनी कटिंग हम इसको लेके कटिंग से भी तैयार कर लेते हैं टू दैट शूट फॉर लीव्स दैट टू यूज फॉर द कटिंग. और फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रिपेयर नर्सरी आफ्टर देन टू ट्रांसप्लांटिंग इनटू द फील्ड, इसके बाद हम फील्ड में लगा देते हैं. ये देख रहे हो कॉफी का प्लांट है. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में कटिंग और ग्राफ्टिंग दो प्रोसेस हम इसमें यूज करते हैं. दे हैव टू यूज द टू प्रोसेस, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग. प्रोपोगेशन बाय कटिंग, सिलेक्शन ऑफ द शूट, सेलेक्टेड ऑर्थोट्रोपिक शूट्स, वर्टिकल शूट सकर फ्रॉम द इलाइट ट्री, जो आपका बेस्ट क्लॉन्स है उससे हम ले लेते हैं. टू एज दे हैव टू 3 to 6 month ओल्ड शूट वी आर बेटर फॉर द कटिंग. ओके, शेड में एंड कॉफी प्रोडक्शन, आप शेड में देख रहे हो बीच बीच में पौधे लगे हुए हैं बड़े बड़े, उनके नीचे कॉफी ग्रोइंग किया गया है. बोथ स्पीशीज अंडर स्टोरेज ट्री दैट इज टू वेल अडॉप्टेड शेड टू इनिशियल कॉफी वाज प्लांटेड अंडर द शेड फॉर द फाइंड द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द फ्रूट एंड एरोमा. तो स्मॉल होल्डर्स में भी यूज्ड मिक्स फार्मिंग स्मॉल होल्डर से ये कर सकते हैं, ठीक है. आप देख रहे हो शेड और कॉफी प्रोडक्शन में कंपैरिजन दिया गया है टू यूज द फर्टिलाइजर नॉन फर्टिलाइजर. दो डाटा है शेडेड और अनशेडेड में. तो देखो शेडेड कंडीशन में सेम डाटा यूज किया गया है, और अनशेडेड में प्रोडक्शन बढ़ जाता है बट दे हैव टू डिफेक्टेड ऑन द एरोमा. हायर इनपुट सिस्टम में बेटर विद द फर्टिलाइजर, लो इनपुट सिस्टम में नॉट टू एज एसेंशियल. ओके, तो दो वो डाटा इज टू शोन हियर.
add to the fertilizer, non-fertilizer. कॉफी प्रोडक्शन में ट्रेनिंग टूलिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको मालूम है ट्रेनिंग टूलिंग टू भाई टू नीड फॉर द क्रिस क्रॉस ब्रांचिंग एंड डेंस ब्रांचिंग दे आर कट फ्रॉम द ट्री ड्यू टू द पेनिट्रेशन ऑफ photos inside of the plant or in the plant, or set trees to maximum use of the space, that is for the management to maintain open tree to allow good light penetration. Okay, so minimum biennial bearing is in need for the growth, removal diseased or criss-cross branches from the टाइप ऑफ ट्रेनिंग में सिंगल स्टेम ट्रेनिंग होता है, मल्टी स्टेम ट्रेनिंग होता है। इसमें दो तरह का ट्रेनिंग होता है, एक तो सिंगल स्टेम से ट्रेन करते हैं, एक मल्टी स्टेम से ट्रेन करते हैं। सिंगल स्टेम में टॉपिंग ऑफ द ग्रोइंग, पहले टॉपिंग कर देते हैं, इसके बाद साइड ब्रांचेस होती है तो उसको मेंटेन करते हैं ताकि तो सिंगल स्टेम सिस्टम है। So to restrict vertical growth and facilitating that is lateral branching or giving the increase the food period. Okay. So thickening of the main stem, it is also the help to diversion of the food material to thicken the main stem and to primary branches. ठीक है, so as to shown in the plant branches the desirable height after then to have to top. So rising the second tier system, the first tier system था, firstly have to cut and after then second tier system, second is to cut depending on the fertility of the soil and spreading of the plant they are attain up to the height of 4 say 5 feet height. Okay, and after then to second tier is to rise. Here to first tapping height on the coffee, that is to अरेबिका टाल में है जो टैपिंग हाइट है फर्स्ट टायर सिस्टम है क्या है 60 to 75 सेंटीमीटर कट कर देते हैं। ऐसे मान के चलो आप, पहले हम जैसे हमारा 2.5 फीट या 75 सेंटीमीटर का होता तो पहले हम उसके ग्रोइंग पॉइंट को काट देते हैं। आफ्टर देन उसमें साइड ब्रांचेस निकलती हैं तो उसमें फिर इसको 5 फीट पे जैसे ही पहुंचता है फिर हम दोबारा उसको काट देते हैं। सेकेंड टायर हाइट एंड फर्स्ट टायर हाइट समझ रहे ना, दैट इज टू दो बार इसको हम टॉप ग्रोइंग को रोकते हैं जिससे साइड ब्रांचेस निकल आए। साइड ब्रांचेस पे फ्रूटिंग होती है, ठीक है। तो अरेबिका ड्वार्फ में दैट इज 3 to 4.5 फीट पे करते हैं, रोबस्टा में दैट इज 3.5 से 4 फीट पे करते हैं, और इसमें जो सेकंड टायर सिस्टम में 4.5 से 5 फीट पे हम चेक करते हैं, ग्रोथ को रोक देते हैं। कॉफी ब्रेक, आप कॉफी ब्रेक मैंने इसलिए डाला है कि हमें कोई ऐसा स्लाइड मिल गया था दैट इज टू 50% स्लाइड्स दे आर पासिंग थ्रू, सो दैट टू द रेस्ट ऑफ 1 or 2 सेकंड आफ्टर देन टू द स्टार्ट। तो इतना पार्ट आपने समझ लिया है यहाँ तक कि कॉफी क्या होती है, कैसी ग्रोइंग होती है, कौन कौन सी वेराइटी होती है और विश्व के किन पार्ट में ग्रोइंग होती है, ठीक है ना। दूसरा ये भारत में कहाँ कहाँ पर पैदा होती है, ओनली टू साउथ पार्ट दे आर द बेस्ट जोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉफी, ठीक है। उसमें कर्नाटक का सबसे पहला नाम है। तो यहाँ पर हमने देखो ब्रेक, कॉफी ब्रेक में दिखाया गया तो बीन्स से कॉफी, बीन्स को जैसे गेहूं को पीसकर आटा बनाते हैं, इससे बीन्स को पीस करके फ्लोर बनाते हैं जो हमारे बाजार में मिलता है। उस फ्लोर को हम जब दूध के साथ मिक्सअप करेंगे बटर के साथ तो आपकी कॉफी तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। तो कॉफी ब्रेक से आगे चलें, ठीक है चलते हैं, ठीक है। ये आपकी कॉफी ब्रेक है तो मैं एंजॉयमेंट टू हैव टू पुटिंग द स्लाइड हियर। आपका देन टू सिंगल स्टेम ट्रेनिंग में आपको सेंटर लीडर सिस्टम से हम ट्रेंड करते हैं। सेंटर लीडर सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग एंड टूलिंग आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सेंटर लीडर सिस्टम और मॉडिफाइड लीडर सिस्टम ये आपने पढ़े हैं। तो कट बैक द ऑर्थोट्रोपिक स्टेम हम ऊपर से काट देते हैं, रिपीटेड 3 to 5 ईयर ये प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं, जिसका उद्देश्य ऑन टू हैव टू विच ईच साइकिल द ट्री गेट्स बिगर canopy. Okay, so lower limbs die due to have to break off the light or resummate after 3 to 5 years and reduce the size of the tree. साइज को रोकते रहते हैं जिससे हमें साइड ब्रांचेस निकलती रहती हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर हमने इसको दिखाया गया है किस तरह से हम प्लांट को ट्रेन करते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, 3 स्टेजेस में। सेंटर लीडर सिस्टम से, लीडर सिस्टम मतलब सीढ़ियों जैसे हम प्लांट के जो हमारी ब्रांचेस को, साइड ब्रांचेस को हम तैयार करते हैं। देन द ट्री रीचेस हाइट दैट इज टू 60, पहला कट कहाँ लगाया हुआ है हमने 69 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर कट मारा है। ये तो इसमें फर्स्ट कट मारा है 53 पे, ठीक है। आफ्टर देन तो रीच होगा, फिर 140 सेंटीमीटर का कट लगाया है, फिर 168 सेंटीमीटर कट लगाया है, जिससे कि हमारी साइड ब्रांचेस बराबर बराबर निकलती रहती है टू द बियरिंग ब्रांचिंग, ठीक है। क्लियर हो रहा ना। चलिए मल्टीपल स्टेम सिस्टम क्या होता है, उसमें कई मल्टीपल स्टेम तैयार करते हैं फॉर द साइड ब्रांच डेवलपमेंट के लिए। तो practice of the Africa and Latin America countries to here to multiple stem they are encouraged by the bending
the main stem. Okay, so that is above the system इसको बोलते हैं above the system. So in India, multiple stem training system is to practice under the certain circumstances. So that is replaced field when old blocks or they have to replace the new material. The old plants are stumped and converted into the multiple stem and to yield crops until to the new plant come to the bearing. ये मतलब कहने का मतलब हमारे यहाँ है जैसे पुराने ओल्ड ब्रांचेस हो जाते हैं जैसे आपका डिहॉर्निंग कर देते हैं या पूरा का पूरा काट देते हैं तो साइड से बहुत सारी ब्रांचेस the multi system that is here to coffee planted very closely initially in the year to let the thinning out of the normal situation, or have to the plant wishes to thinning out or remove the growing plant or to rise or multiple stem for enabling the main plant to spread out of the lateral branching. Okay, here to multiple stem में देख रहे हैं modified center leader system इसमें यूज करते हैं 2 to 8 orthotropic stems इसमें रखते हैं to cutting out the wood in the center and continue growing taller for the area moved ahead. So rejuvenate every 4 to 6 years, meet to the lower footing surface and allow basal sucker to grow. यहाँ देख लो मल्टीपल स्टेम ट्रेनिंग दिखाया गया है तो फर्स्ट पहले आप देख रहे हो उसको 53 पे हमने काटा है फिर इसके अगेन टू हैव टू द 2 ब्रांचेस टू मेंटेन आफ्टर देन टू 53 पे दे हैव टू आल्सो द कट एंड टू मेंटेन द थर्ड स्टेज दैट इज टू क्रॉप स्टेज लिखा है जैसे स्कर्ट एंड टू क्रॉप स्टेज इसमें हम क्रॉपिंग लेते हैं ठीक है स्कर्ट इसको बाद में स्कर्ट को हटा देते हैं फिर मेन क्रॉप आ जाती है तो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज इसमें हम मल्टीपल स्टेम को तैयार करते हैं यहाँ देख लीजिए दैट इज टू स्टेज 4 स्टेज 5 स्टेज 6 इस तरह से जब दो तैयार हो जाती हैं फिर 2 से 4 से इस तरह से हम मल्टी स्टेम तैयार करते हैं तो फाइंड द मैक्सिमम प्रोडक्शन फॉर द थ्रू द मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम. ओके यहाँ पर देख लीजिए मॉडिफाइड लीडर सिस्टम आल्सो दैट टू द ओल्ड ट्री हैव टू कट एंड साइड ब्रांच टू दे हैव टू मेंटेन आफ्टर देन टू मेंटेन द मल्टी स्टेम इसके बाद हम मल्टी स्टेम को फिर मेंटेन करते हैं. So they are also the system of the training and pruning to maintain the canopy shape and size of the tree. Okay. Pruning. Hello. Yes. हाँ जी. कहाँ से हाँ बताएं. हाँ जी. हाँ अब आए मैं अभी क्लास लेने के बाद फिर पूछता हूँ ठीक है सर अभी क्लास रनिंग हाँ ठीक है सर ओके नो प्रॉब्लम करता हूँ सर अभी सर मैं करता हूँ क्लास लेता हूँ फिर देखता हूँ. So pruning on coffee beneficial for the pruning coffee to have to accumulation of the carbon nitrogen ratio in the plant to have to check the disease part of the infected part or pest growth part we have to discard it from the plant. Okay. So manageable shape that to proper pruning to tree maintaining the managerial shape and thereby to improving the efficiency of the field operations or that is spraying and is forwarding and to the harvesting. Okay, so pruning and the coffee to object only for increase the carbon nitrogen ratio and to at the time of flowering and fruiting you have to expose the flowering to have to a lot of nutrient in the plant body system. Okay, so only the object for this one. So methods of pruning, light pruning हो सकती है थोड़ा सा जैसे old branches है, unproductive branches है, crust growth branches है, dead है, broken branches है, disease branches suckers हैं और medium to severe pruning में periodically that medium to severe pruning to it is to done on the older plant or to the disease plant also the severe pruning. आप देख रहे हो यहाँ पर germination sheet का दिया गया है, seedlings लगे हुए हैं कॉपी पे. So nutritional management have to be not very important parameters to not need more nutrition to find the maximum production to need the nutrition for the Arabica or coffee tree. So application of the FYM compost to that is 5 ton per hectare is to need for
द बेस्ट प्रोडक्शन। एंड आफ्टर द भी ऐसे कह सकते हैं 2-3 साल तक नीड है, 2-3 साल तक इसकी जरूरत होती है। आफ्टर देन टू 80% कैल्शियम कार्बोनेट नीड फॉर लाइमिंग, जिसको बोलते हैं लाइमिंग एनालिसिस। इसमें लाइमिंग मस्ट है फॉर द नीड द मोर कैल्शियम कंपेयर टू द अदर न्यूट्रिएंट। तो 80% कैल्शियम कार्बोनेट टू अप्लाई इन द नवंबर एंड टू बेस्ट पीरियड फॉर द लाइमिंग एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन डोलोमाइट लाइम, जो आपको जिसमें लाइम कैल्शियम परसेंटेज ज़्यादा होता है, इज द यूज फॉर द क्रॉप रोटेशन। ओके, यहाँ पर देख रहे हो फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट दिया गया फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो प्री ब्लूम मार्च में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। फर्स्ट ईयर में 8 ग्राम में मात्रा ग्राम में है, 8 ग्राम नाइट्रोजन, 5 ग्राम फास्फोरस, 8 ग्राम पोटास। एनपीके। ऐसे पोस्ट ब्लूम में, प्री ब्लूम, पोस्ट ब्लूम और पोस्ट मानसून, ठीक है। 3 कंडीशन यहाँ पर ये मार्च, मई एंड अक्टूबर में हम एप्लीकेशन करते हैं नाइट्रोजन का। तो सेकेंड और थर्ड ईयर में इसको एप्लीकेशन 1.5 गुनी 2 गुनी कर देते हैं। फिफ्थ ईयर में नियर अबाउट 2 गुनी कर देते हैं। और थर्ड, फोर्थ और 5 ईयर में अमाउंट बढ़ाते जाते हैं अकॉर्डिंग टू एज के हिसाब से इसका अमाउंट बढ़ाते जाते हैं। और ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, देखो ग्राम में दिया गया है। जब आपके नॉर्मल फूड ऑर्चर्ड में ये 40-50 ग्राम तक होता है। 8 ग्राम, 5 ग्राम, 8 ग्राम, तो नीड ए लीस्ट अमाउंट ऑफ द एनपीके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर द कॉफी। शेड मैनेजमेंट पे शेड हाई टू नीड द शेड मैनेजमेंट इन कॉफी। तो दैट इज क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए शेड मैनेजमेंट करते हैं, इंप्रूव द फोलियर हेल्थ के लिए। मल्चिंग इफेक्ट आल्सो हैव टू द शेड करेंगे तो शेड पत्तियां गिरेंगी तो मल्च का भी काम करती हैं, पत्तियां गिर जाती हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन में भी इसका काम होता है शेड का। तो अगर पौधे छाया वाले पौधे लगे हुए हैं, सिल्वर ओक वगैरह, तो वो क्या है, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिक मैटर को इम्प्रूव करते हैं। डिजीज इंसिडेंस होता है, यील्ड रेगुलेशन को भी इम्प्रूव करते हैं। दैट इज टू शेड मैनेजमेंट पैरामीटर्स। आप देख रहे हो यहाँ पर कॉफी फ्रूट बोथ इन द रेड एंड ग्रीन कंडीशन दोनों दिया है। इसमें यूनिफॉर्म रैपनिंग नहीं होता है। जो रैपिन होते हैं तो उनको हम तोड़ लेते हैं, फिर जो है ना फिर अगेन टू देयर रैपिन। तो प्लकिंग होती रहती है 10-15 दिन पर, इसकी प्लकिंग करते रहते हैं और इसके बाद इसको हम प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं। आप ये टिपिकल सन कॉफी प्लांटेशन पे लगा हुआ है, देखो हिल्स पर एलिवेशन पे। इसको रियल एस्टेट में एलिवेशन जो प्लांटेशन का मतलब है, लॉट ऑफ एरिया दे आर कवर्ड बाय द सेम स्पीशीज बट दे आर मेंटेन और रेगुलेटेड बाय द लोकल लेबर, दैट इज द प्लांटेशन क्रॉप। ओके, यहाँ पर देख रहे हो फार्म दे हैव टू रियल फॉर्म हियर। Harvesting and yielding. Harvesting fruit ripening of the coffee purpose is to speedy or uniform ripening will be give to scope of the quick and early harvest. Okay, तो reduce the cost of harvesting in coffee. अगर एक ही साथ पक जाते हैं तो हमारी कॉस्ट प्लकिंग की बच जाती है, नहीं तो लेबर ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट ज़्यादा आएगा। मोस्टली उन वेराइटियों को लगाते हैं जो इनकी राइपनिंग सेम यूनिफॉर्मली होती है, ठीक है। हार्वेस्टिंग द बेरीज इन इंडियन कंडीशन दे हैव टू ओनली द वन क्रॉपिंग सीजन। So Arabica coffee is harvested November to January and Robusta coffee there December to February. So the crop will be up to ready for the first harvest in 3 to 4 years and economic yield obtained that is 5 to 12 years onwards. Okay, 50 years. So that is to berries are harvested and they are turned red to deep crimson color and to season of harvest to October to February. Harvest is done in the stage of the following. आप देख रहे हो इस तरह के हम हार्वेस्टिंग बेरी लेते हैं, इस तरह से पार्चमेंट बेरी बोलते हैं इसको। वो डन बाय द हैंड हार्वेस्टिंग होती है। और अभी हालांकि मैकेनाइज हार्वेस्टिंग भी चालू होगी, ब्राजील में मैकेनाइज हार्वेस्टिंग होती है। तो ब्राजील अलाउड टू चेरी टू ड्राई ऑन द ट्री, इस तरह सेकेंड प्रोसेस में ब्राजील में होती है। आप देखो इस तरह से आप देख रहे हो। अब क्यों हम तो ट्रेनिंग प्रोसेस को बता रहे हैं, दैट इज टू सेंटर लीडर मॉडिफाई सेंटर लीडर सिस्टम से इस तरह से चेरी लगी होती है। तो दे हैव टू सीन हियर टू नॉट रैप इन द यूनिफॉर्म वे, उसमें यूनिफॉर्म वे में रैप नहीं है। तो मैनुअली प्लकिंग ऑफ द चेरीज फ्रॉम द प्लांट आफ्टर देन टू अगेन टू द प्रोसेस रीस्टार्ट 30 to 14 days आफ्टर दे हैव टू रीप्लक। तो इस तरह से चेरी को हम इकट्ठा करते रहते हैं तो द सोर्सेज ऑफ द कॉफी। फ्लाई प्लकिंग होती है, मैन प्लकिंग होती है, स्टेपिंग होती है, क्लीनिंग, वी हैव टू द मैन स्टेप्स ऑफ द harvesting of the coffee. So fly picking is small scale picking of the ripe berries from the October to November and February. Man plucking well formed berries are harvested in December.
दैट इज स्टपिंग में क्या करते हैं, ऑल लेफ्ट ओवर द बेरीज रिस्पेक्टिव ऑफ द रैपनिंग आर हार्वेस्टेड आफ्टर द मेन प्लकिंग। पहले तो हम एक बार में जितनी पक जाती हैं उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं, इसके बाद जो अनपकी रह जाती हैं या ग्रीन और आधे कलर जिसमें होता है पका हुआ, उनको बाद में हार्वेस्ट करते हैं। इसके बाद उसको क्लीन करते हैं, पत्ते टूटी फूटी लकड़ियाँ जो आ जाती हैं उनको क्लीन कर लेते हैं। क्लीन कलेक्शन ऑफ द फूड दैट इज ड्रॉप डाउन द ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग, वो डैमेज रोग वाले हटा देते हैं। Disease and insects have to lesser due to the disease. Africa में that is due to affect the 50% alone to Africa, Asia में 10% and South America 12% they have crop they are damaged by the disease. Okay, so coffee rust that is to main rust of the main diseases of the coffee. So that is the first in Sri Lanka found in 1880. Now throughout the world, to control robusta or hybrid stem variety they are used for the control the rust. And on less serious they are grown in the 1700 elevation, और that copper fungicide they are used for the control disease। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, ठीक है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड में कॉपर मिला होता है, ठीक है, बोडक्स मिक्सचर है, इसमें कॉपर होता है, तो इसमें हम स्प्रे करेंगे तो दे हैव टू कंट्रोल द कॉफी रस्ट। इस तरह के सिम्टम आ जाते हैं, आप वाइट प्लसेस और इस पर लीफ पर दिखाई देते हैं। कॉफी बेरी डिजीज में द कोलेटोट्राइकम से होती है, कॉज द बेरी रॉटिंग हो जाती है, बेरी रॉटिंग कर सकते हो बाई द कोलेटोट्राइकम से होता है, या आल्सो द फंगल डिजीज है। लूज ड्यू टू हैव टू अफ्रीका 20%, एशिया 15% एंड साउथ अमेरिका 15%। कॉफी बेरी बोरर है, ये इंसेक्ट है दैट इज टू originated in Africa now throughout the world to have larvae is the damage the fruit and berries. So by controlling removing the part of chemical they are used for any कोई भी इंसेक्टिसाइड को आप यूज कर सकते हैं, जैसे फिनाइल मिथाइल पैराथियान है, आपका फेनोब्लेट है, इकोनॉल फॉस है, डाइमेटोएट है, और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भी हम इसमें प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। दैट इज टू कीवर्ड फॉर कंट्रोल द बोरर। Coffee processing is the another part for this one. So that is to process. How can you collect the coffee? Okay. So there are two processes here हैं, wet process और dry process। तो wet process में पहले हम खट्टा करेंगे, फिर sorting करेंगे, pulping करेंगे, pulp मतलब उसको पल्प को fermented करेंगे, पल्प को fermented करने के बाद ड्राई करके बाद पॉलिशिंग, डिकैफिनेशन एंड रोस्टिंग, ग्राइंडिंग, पैकेजिंग प्रोसेस है। ड्राई प्रोसेस में भी यही प्रोसेस, सॉर्टिंग करेंगे, ग्रेड करेंगे, ड्राई करने के बाद सीधा पॉलिशिंग पे आ जाएंगे, डिकैफिनेशन, रोस्टिंग, ग्राइंडिंग, पैकेजिंग। अगेन हम इसको बोल सकते हैं और बता सकते हैं आपको कि दैट टू हार्वेस्टिंग करेंगे, फिर रिसेप्शन में ड्राई प्रोसेसिंग, वेट प्रोसेसिंग, सेमी ड्राई प्रोसेसिंग, तीन प्रोसेस में दिखाई दिया प्रोसेसिंग फ्लो चार्ट में। इसमें सेपरेशन करेंगे, तीनों में सेपरेशन करेंगे, सेमी ड्राई में पल्पिंग करेंगे, लेकिन आपको ड्राई पल्पिंग नहीं करनी है, ठीक है, और वेट प्रोसेसिंग में पल्पिंग करेंगे, इसके म्यूसिलेज को रिमूव कर देंगे। इसके बाद जो आपका बीन्स आया है उसको कलेक्ट करके ड्राई करके उसको स्टोर कर लेंगे, फिर उसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बाजार में आपके बीन्स अवेलेबल हैं, ग्रीन कॉफ़ी अवेलेबल है, ठीक है, उनको बीन्स डायरेक्ट भी ले सकते हो और आपके पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है, दोनों ही फॉर्म अवेलेबल है मार्केट में। प्री क्लीनिंग हो गया, डिश टोनिंग हो गया, होलिंग, पॉलिशिंग, साइजिंग एंड ग्रेप टी सेपरेशन, कूलर स्टोरेज एंड ब्लेंडिंग एंड बेइंग आफ्टर द बैगिंग और कंटेनर स्टफिंग। वी हैव टू प्रोसेस ऑफ दिस वन कंटिन्यू। वेट मेथड में शॉर्ट हार्वेस्ट डे है, तो स्टार्ट टू हार्वेस्टिंग डे से स्टार्ट करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं ऑफ द बेरी एंड फ्लोटिंग बेरी को निकाल देते हैं। गुड बेरी आर डिप्लेट इन द सेम डे एंड आफ्टर देन टू सेंड टू द फर्मेंटेशन चैम्बर ओनली टू रिमूव द म्यूसिलेज फ्रॉम। आपने देखा चेरी के ऊपर बहुत सारा गूदा होता है, उसको निकाल कर हमको भीतर से दाने निकालने होते हैं जिसको हम बीन्स बोलते हैं, ठीक है। तो फर्मेंटेड करके ये देखिए बहुत बड़ी एरिया में होता है, तो फर्मेंटेशन इज द चीपेस्ट प्रोसेस एक्सेप्ट हीट एंड डिस्ट्रॉयड द फ्लेवर। ज़्यादा हीट कर देंगे तो उसका फ्लेवर उड़ जाएगा। इसको देख ले सकते हैं, यहाँ पर हमने एक बार फिर उसको दिखाया गया है कि कॉफ़ी चेरी में स्किन है, फ्रूट म्यूसिलेज है, पार्चमेंट है, सिल्वरी स्किन है, बीन। तो ओवरऑल हमको चाहिए क्या, बीन चाहिए होता है। ड्राई में सीधा सीधा ऐसे ही सुखा देते हैं और उसको क्रश कर देते हैं, ठीक है। तो जो बेट फर्मेंटेड बीन होता है दैट इज प्योर बीन। ओके, आप देखो बेट मेथड में इस तरह के निकालने के बाद उसको ड्राई करते हुए फील्ड में दिखा है, बेटर अंडर द प्रेशर टू ड्राई स्प्रेड आउट द ड्राई, सन ड्राइंग आर्टिफिशियल हीट दोनों से हम कर लेते हैं। बेस्ट क्वालिटी गिव कॉफी दैट इज टू क्लीनर, ब्राइटर, फुटर एंड बेटर एसिडिटी हैव टू बी मेंटेन दिस वन। यह देखो तो जो बेटर प्रोसेसिंग चैम्बर यहाँ पर दिखा रहा है, एक बड़ा सा चैम्बर बना हुआ है जिसमें हम उसको फर्मेंटेड कर रहे हैं।
पहले फ्रूट्स को चेरी को लाते हैं, फिर इसको डिफ्रैक्टेड करते हैं, उसके बाद फर्मेंटेड करते हैं, बास करते हैं, क्लीन करते हैं, फिर ड्राई करके फिर हम इसको डिहोलिंग करके ड्राई करके हम पैक कर देते हैं। ऐसे ड्राई मेथड में नेचुरल मेथड भी है ड्राइंग टू इंडोनेशिया, इथियोपिया, ब्राजील, यमन में इनिशियल ड्राइंग टू द ट्री ऑन द ट्री शेड ट्री में इसको हम ड्राई कर लेते हैं, स्प्रेड ऑन द कंक्रीट टाइल मेथड टू प्रोटेक्ट टू थिक और ऑन दैट कॉन्स्टेंटली रैंक टू 3 to 15 days until to स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। 3 से 15 दिन तक हम इसको डाल के रखते हैं कंक्रीट फ्लोर पर। आफ्टर देन पे जब मॉइस्चर कम हो जाता है इसके बाद हम इसको नेक्स्ट ड्राइंग प्रोसेस में यूज करते हैं। आप देख रहे हो ब्लोइंग करता हुआ, बिनोइंग ऑफ द फ्रूट्स को बिनोइंग करके पत्ते पत्ते इसको निकाल रहा है। आफ्टर देन टू हैव टू दैट इज टू शिफ्टिंग एंड ड्राइंग दैट प्रोसेस इन द ड्राइंग मेथड में रिमूव द पेरिकार्प को हम निकाल लेते हैं, दैट इज चाफ रिमूव करते हैं, सॉर्टेड बाय द साइज, शेप, डेंसिटी एंड कलर एंड पैक्ड 60 kg बैग फ्रॉम द प्रोसेसिंग। इसके बाद हम प्रोसेसिंग के 60 kg बैग्स में ले आते हैं। ग्रेडिंग ऑफ द कॉफी आप देख रहे हो, तो द ग्रेड चेरी कॉफी में अरेबिका प्लांटेशन चेरी कॉफी है, रोबस्टा दैट इज बास्ट प्लांटेशन करते हैं, रोबस्टा को पार्चमेंट कॉफी चेरी बोलते हैं, पार्चमेंट कॉफी बोलते हैं, और अरेबिका को प्लांटेशन कॉफी बोलते हैं। दैट इज प्लांटेशन चेरी, दैट इज जो ड्राई प्रोसेसिंग में चेरी बनता है, दैट इज टू पार्चमेंट चेरी और दैट इज प्लांटेशन चेरी। ओके, you have to different grades here to seen here। बास्ट अरेबिका में प्लांटेशन PB, प्लांटेशन A, B, C, प्लांटेशन ब्लैक, वाइट्स एंड बल्क, ठीक है। बास्ट अरेबिका में दैट इज अरेबिका चेरी बोलते हैं, अरेबिका चेरी PB, A, B, C, अरेबिका चेरी ब्लैक, ब्राउन, अरेबिका चेरी वाइट्स एंड बल्क, टू डिफरेंट ग्रेड्स अरेबिका कॉफी के। इसी तरह रोबस्टा में होता है, रोबस्टा बास्ट रोबस्टा है, रोबस्टा पार्चमेंट बोलते हैं, रोबस्टा प्लांटेशन PB, AB, C एंड रोबस्टा प्लांटेशन ब्लैक, ब्राउन, रोबस्टा प्लांटेशन वाइट एंड टू बल्क। इसी तरह अनबास्ट रोबस्टा में होता है रोबस्टा चेरी PB, AB, C, रोबस्टा चेरी ब्लैक, ब्राउन, रोबस्टा चेरी वाइट, रोबस्टा चेरी बल्क। यहाँ देख रहे हो दैट इज मानसून कॉफी में अरेबिका मानसून कॉफी, मानसून मालाबार ए मानसून बसनली एंड टू मानसून अरेबिका ट्राइज। इसी तरह से रोबस्टा मानसून कॉफी में दैट इज मानसून रोबस्टा ए एंड मानसून रोबस्टा ट्राई, ये डिफरेंट ग्रेड्स हैं। दैट इज टू इंस्टेंट कॉफी। इसके अलावा और भी ग्रेड है, इंस्टेंट कॉफी है, ग्राउंड कॉफी है, रोस्टेड सीड्स हैं, ठीक है, जो अवेलेबल मार्केट में। स्पेशलिटी कॉफी दैट इज टू मानसून कॉफी, मैसूर नोगेट्स FB एंड रोबस्टा कापी रोयली, दैट इज टू ग्रेड ऑफ द कॉफी। So that is to here to moisture content in the coffee, different type of the coffee। प्लांटेशन कॉफी में 10% मॉइस्चर होता है, अरेबिका चेरी में 10.5 होता है, 10.5 में, रोबस्टा पार्चमेंट में 10% होता है, रोबस्टा चेरी में 11% मॉइस्चर होता है, और मैसूर नोगेट FB में 9 से 10.5 तक होता है, रोबस्टा कपी रोयली में 9 से 10.5 तक होता है, और मानसून कॉफी में 13 से 14.5 तक मॉइस्चर है टू फॉर्म। जो बिन टू कप दैट इज टू, ये कैसे कब तक जाते हैं, पहले आप देख रहे हो किस तरह से हम प्लांटेशन करते हैं, फिर फ्रूटिंग कलेक्शन करते हैं, फिर इसका पैकिंग ऑफ द कॉफी बीन्स, पल्पिंग करते हैं, इसके बाद बीन्स को रिमूव द दैट इज टू एक्सेसिव बाय द फर्मेंटिंग एंड बासिंग से निकाल करके हम इसको ड्राइंग करते हैं, मिल्किंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं, और फिर इसके बाद टेस्टिंग द कॉफ़ी, फिर इसके बाद हम कॉफ़ी को टेस्ट करते हैं। तो ये है आपका टेस्टिंग कपिंग द कॉफ़ी, कॉफ़ी को किस तरह से हम पी सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज टू इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग में ग्रेडिंग प्रोसेसिंग है, रोस्टिंग प्रोसेसिंग है, वो कमर्शलाइजेशन होता है, रोस्टिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, लाइट रोस्टिंग है, डार्क रोस्टिंग है, टाइम हो गया सर, अटेंडेंस ले लो। का पता लगाते हैं। और कैफीन रिडक्शन, इसमें कैफीन भी देखते हैं कितना कैफीन है, एक्सट्रैक्ट विद द मिथाइलिन क्लोराइड और इथाइल एसीटेट से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। रेजिडुअल सॉल्वेंट रिमूव बाय द लो लेवल ऑफ द स्टीम ड्राइंग। ओके, कैफीन कैन बी रिकवर्ड विद द बेटर एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉर्मिक सॉल्वेंट। तो यहाँ से देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉफी, दैट इज द स्मॉल प्रोड्यूसर है, लोकल मिडलमैन है, लार्ज लैंड ओनर्स हैं, दैट इज टू प्रोसेसर, एक्सपोर्टर, मल्टी ब्रोकर्स, इंपोर्टर, रोस्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड रेस्टोरेंट एंड कंज्यूमर्स टू द प्रोसेस टू दे आर यूज्ड। तो दैट टू रेफरेंसेस यहाँ से लिया गया है,
और ये आपका एनी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ भी आपको पूछना है, आपको एनी क्वेश्चन बताइए। थैंक फॉर योर फॉर अटेंशन। ओके, तो ये आपका है, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द कॉफी प्रोडक्शन तो आस्क मी। ओके, तो अटेंडेंस अब मेरे को आपको देना है, फटाफट मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, क्वेश्चन भी पूछते चलिए, मैं अटेंडेंस भी ले लेता हूँ, छोटे कंसिडरेशन होगा इसी में। चलिए, फिर अटेंडेंस जानी है रिकॉर्ड में, फिर रिकॉर्ड मांगा है हम लोगों से, जो लड़के एग्जाम जो लड़के क्लासेस लेते हैं उनके नाम आप लिखित में देंगे, ठीक है ना। तो हम आपको एक अप्रैल की अटेंडेंस ले लेते हैं। रितिका आई है, रितिका 3 तारीख है, रितिका है, रितिका, प्रेजेंट सर। रूपम कालरा, आवाज खोलिए आप लोग, अनम्यूट करिए। सर ये दूसरी सर ये क्लास की हमारी अटेंडेंस क्लास के है। नहीं है। कुणाल, प्रेजेंट सर। अरे इनको फिर ना सुन रही यार। अश्विनी, सर ये हमारी क्लास की नहीं है आप हाथ अटेंडेंस। उठाते जाइए तो अभी हम जान जाएंगे आपको साउंड जा रही है कि नहीं जा रही है। अच्छा, विष्णु आप अनम्यूट करिए। सर ये आप थर्ड विष्णु, ईयर वालों की अटेंडेंस ले रहे हो। अरे फोन करके कह दो यार कोई। अटेंडेंस कैसे जाएगी, आप बोलेंगे नहीं तो अटेंडेंस कैसे जाएगा फिर। अरे प्रेजेंट सर। थर्ड ईयर की है। अनम्यूट करके बोलिए आप। सर ये थर्ड ईयर की है। हेलो, सर हम सेकंड ईयर वाले हैं, ये थर्ड ईयर की अटेंडेंस ले रहे हो आप। हेलो, आवाज क्यों नहीं आ रही है सर आपकी। हम सेकंड ईयर के बच्चे हैं, आप थर्ड ईयर क्लास अरे रुक थर्ड ईयर जाना। की अटेंडेंस ले रहे हो सर, आप हम सेकंड ईयर के हैं। टोटल अटेंडेंस टोटल जाएगा ना, थर्ड ईयर वालों की है, प्रोटेक्टिव कंट्री। और अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, रजिस्टर दूसरा खुल गया था, चलो। दिक्कत हो गई सर ये हाँ, तो। आवाज जा रही है आपकी, बोलो ना, जब हम बोलता हूँ आवाज आएगी। तरुण, तरुण आया है। हाँ चलो तरुण, यहाँ बोलते जाओ। हाँ तरुण का आया है। निधि, निधि, यस सर प्रेजेंट निधि। हाँ निधि बताओ। प्रेजेंट सर निधि। विधि, विधि, यस सर प्रेजेंट। यस सर प्रेजेंट। सर प्रेजेंट विधि। सर निधि प्रेजेंट। हाँ विधि का बताओ, विधि है। यस सर। अच्छा विधि है। अच्छा ये ऋषिता, ऋषिता, प्रेजेंट सर ऋषिता। हाँ भेजो आप मेरे को, वो भेजो अटेंडेंस, ठीक है ना। अभी एचआर का फोन आया था। हाँ सर, मैं इनको कहा आप इधर पे थे, मुझको पता नहीं था। तो कदीम साहब के पास कदीम सर आए हैं, तो कदीम सर थे, तो उन्होंने ये कहा था कि उनको परमिशन नहीं है, तो क्यों आए, तो हमने भैया मैं अभी पूछ लेता हूँ, मेरी क्लास अभी ले रहा है। तो उनको चंदन देव को मैं बता दिया था कि मैं आया हूँ यहाँ पे, तो क्या करूँ सर, मैं तो डीन साहब से पहले भी बताया